ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت اور عالی رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی رحمت عامہ کو بیان فرمایا ہے۔ دنیا میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، لیکن حضور کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی رحمت کو، کسی بھی نعمت کو للعالمین نہیں فرمایا۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، ہر بندہ پانی پیتا بھی ہے، استعمال بھی کرتا ہے، بے شمار کام پانی کے ذریعے کیے جاتے ہیں، پانی ہر بندے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت نہیں فرمایا۔ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ اگر 2-4 منٹ کے لیے بند ہو جائے تو بندے کا جینا مشکل ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا کو للعالمین نہیں فرمایا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت نہیں قرار دیا۔ اسی طرح چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی ہے، اسی طرح اولاد ہے، والدین ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین نہیں فرمایا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، لیکن حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب سوال یہ ہے کہ اے اللہ پانی بھی تیری رحمت ہے، ہوا بھی تیری رحمت ہے، اولاد بھی تیری رحمت ہے، والدین بھی تیری رحمت ہے، چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن کیوں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی چیز کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار نہیں دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن ہر وقت رحمت نہیں، کبھی رحمت ہوتی ہے، کبھی زحمت ہوتی ہے۔ طوفان بن کے آ جائے، تیز ہوا چلنے لگے، مکان گرنے لگے، کھمبے اڑنے لگے، نقصان ہو جائے تو یہی رحمت زحمت بن جاتی ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن سیلاب بن کر آ جائے تو یہی رحمت زحمت بن جاتی ہے۔ آگ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن خدا نخواستہ کسی مکان کو آگ لگ جائے تو یہی رحمت زحمت بن جاتی ہے۔
औलाद अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन बिगड़ जाए तो यही औलाद जहमत बन जाती है। तो ये सारी रहमतें हैं अल्लाह ताला की, लेकिन कभी रहमत होती है, कभी जहमत होती है। अल्लाह ताला ने हुजूर को तमाम जहानों के लिए रहमत करार दिया, इसलिए कि बाकी हर रहमत कभी रहमत होती है, कभी जहमत होती है, लेकिन हुजूर अल्लाह की ऐसी रहमत है कि हुजूर में जहमत का पहलू पाया ही नहीं जाता। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जहां बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो जाते हैं, कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे जाती है, बड़े बड़ों के हौसले खत्म हो जाते हैं, वहां भी मेरे आका अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ मांगते हुए नजर आते हैं। आपने हदीस पाक सुनी होगी, हुजूर ताइफ तशरीफ ले गए, 1 महीने का तबलीगी दौरा था, हजरत ज़ैद हुजूर के साथ है। पूरा 1 महीना हुजूर ने ताइफ वालों को समझाया, अल्लाह का पैगाम दिया, तौहीद और रिसालत की तबलीग फरमाई, सिराते मुस्तकीम पर लाने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल ऐसे पत्थर थे कि किसी एक बंदे ने भी हुजूर की आवाज पे लब्बैक नहीं कहा, बल्कि उन्होंने क्या किया, हुजूर पर पत्थर बरसाए, खून आपको लहूलुहान कर दिया, जख्मी कर दिया। हुजूर के नाले ने पाक खून से तरबतर हो गए। औबाश किस्म के नौजवान हुजूर के पीछे लगा दिए, वो आवाजें कसते, बूतों का नारा लगाकर हुजूर को परेशान करते। जिस राह से हुजूर गुजरते, दोनों तरफ नौजवान लाइन लगाकर खड़े हो जाते, हुजूर को पत्थर मारते, गालियां देते और बेहुदा अल्फाज बकते। हुजूर दर्द की शिद्दत से दीवार के साए में खड़े होते तो आपको बाजुओं से पकड़कर उठा देते। अलियाज़ बिल्लाह, ऐसी ऐसी हरकतें की, ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते कि अल्लाह की पनाह, लेकिन हुजूर की जबान पर हर पे शिकायत नहीं आया, शिकवे का हरफ नहीं आया, बल्कि हुजूर ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हदीनी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। हदीस शरीफ में है कि बादल का एक टुकड़ा हुजूर के सर पे आ गया और उससे आवाज आई कि अना मलकुल जिबाल, या रसूल अल्लाह मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूं, दुनिया के तमाम पहाड़ अल्लाह ने मेरे हुक्म के ताबे कर दिए हैं, आप मुझे इजाजत दे मैं ये तमाम पहाड़ उठाकर ताइफ शहर पर गिरा दूं। तो मेरे आका ने फरमाया कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह की इबादत करेंगे। और एक रिवायत में हुजूर ने फरमाया कि मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं, जहमत बनाकर नहीं। तो आप देखिए, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत है। हजरत गिरामी तो फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और कानून इलाही है, कानून कुदरत है, फ़इन्न मअल उस्रि युसरा, इन्न मअल उस्रि युसरा, कि एक तकलीफ के साथ 2 आसानी आती है। अब अल्लाह ताला ने इसका सिला क्या दिया, फरमाया है महबूब इस ताइफ के सफर में अगर तेरे नालैन खून से तरबतर हो गए हैं, तेरा इस्तेकबाल पत्थरों से किया गया, तो इन्हीं नालैन के साथ अर्श पे आ जा। वहां गंदे लोगों ने तेरी बात नहीं सुनी, यहां आ और अपने रब से खुलकर बातें कर ली। वहां तेरा इस्तेकबाल पत्थरों से हुआ, यहां आ फरिश्ते तेरे इस्तेकबाल के लिए खड़े हो गए, हूरे तेरी अजमत के तराने गाएगी। ऐ महबूब, अगर उस सफर में किसी ने तेरी नहीं मानी तो यहां आ और अपने रब से जो चाहे मनवा ले। तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब आलम किसे कहते हैं, तो मां सिवल्लाह, अल्लाह के सिवा जितनी चीजें हैं सारी कायनात या आलमीन में शामिल है। हर चीज आलम में शामिल है। और आलम की कई किस्में हैं, आलम इम्कान है, आलम अजसाम है, आलम अनवार है,
फिर आलम अजसाम की कई किस्में हैं, आलम इंसान है, आलम जमादात है, आलम नबातात है, आलम हैवानात है। हुजूर हर आलम के लिए रहमत है। मेरे आका फरिश्तों के लिए भी रहमत है, जिन्नात के लिए भी रहमत है, जानवरों के लिए भी रहमत है, चरिंदों के लिए भी रहमत है, परिंदों के लिए भी रहमत है, मुसलमानों के लिए भी रहमत है, काफिरों के लिए भी रहमत है। हुजूर की रहमत से फरिश्तों को भी हिस्सा मिला, हुजूर की रहमत से अंबिया को भी हिस्सा मिला, हुजूर की रहमत से जिब्राइल को भी हिस्सा मिला, बल्कि खुदा की कसम हुजूर की रहमत से शैतान को भी हिस्सा मिला। मेरे आका यहां भी रहमत, वहां भी रहमत, रोजे महशर हमारे लिए रहमत, कब्र के अंधेरों में मुस्तफा हमारे लिए रहमत, मीज़ान आदल पर रहमत, पुल सिरात पर मुस्तफा हमारे लिए रहमत, हौज़े कौसर पर मेरे आका हमारे लिए रहमत है। हदीस शरीफ में है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, हयाती खैरुल लकुम, क्या मेरे गुलामों, मेरी जाहिरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है, तुम्हारे लिए बेहतर है। व वफाती खैरुल लकुम, और मेरा विसाल कर जाना, पर्दा कर जाना, ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तो सहाबाई किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हयात तो समझ में आती है, लेकिन आपका विसाल फरमाना ये हमारे लिए कैसे बेहतर है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुरदु अलैया आमालुकुम, तुम्हारे आमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे। वमा रअयतु मिन खैरिन, अगर तुम्हारे आमाल अच्छे होंगे, हमिदुल्लाह अलैहि, तो मैं अल्लाह की हम्द बयान करूंगा, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। वमा रअयतु मिन शर्रिन, और अगर तुम्हारे अमाल बूढ़े होंगे तो इस्तगफरतु लकुम, तो मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करूंगा। तो इस दुनिया से लेकर आखिरत तक हुजूर हमारे लिए हर जगह रहमत है। हुजूर जिब्रील अमी के लिए रहमत, जिब्राइल के लिए कैसे रहमत है? साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं, एक दिन हुजूर ने जिब्राइल से फरमाया, ऐ जिब्राइल, मेरी रहमत से तुम्हें क्या हिस्सा मिला? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने अंजाम की खबर नहीं थी कि अच्छा होगा या बुरा होगा, क्योंकि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हारूत मारूत का अंजाम जिब्राइल देख चुके थे और इब्लीस का अंजाम जिब्राइल देख चुके थे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने अंजाम की खबर नहीं थी कि अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन आपकी वजह से अब इत्मीनान हो गया है, अमान हो गया है कि अंजाम अच्छा ही होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मेरे बारे में इरशाद फरमाया कि साहिब कुव्वत या अर्श के पास रहता है और वो अमीन है। तो हुजूर जिब्राइल के लिए रहमत, मेरे आका अर्श के लिए भी रहमत। अर्श के लिए कैसे रहमत? मेराज की रात जब हुजूर अर्श पर जलवागर हुए तो अर्श ने हुजूर के दामन रहमत को थाम लिया। अर्ज क्या, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक हूं। जब अल्लाह ताला ने मुझे बनाया तो उसके जलाल और हैबत की वजह से मैं लरज़ उठा, और जब मेरे सीने पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा गया तो मेरी हैबत में, इस्तिराब में और इजाफा हो गया। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब आपका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया तो मुझे सुकून आ गया। तो मेरे आका अर्श के लिए भी रहमत है, मेरे मुस्तफा काफिरों के लिए भी रहमत है। अगर आप पिछले अंबिया किराम के हालात पढ़े तो पिछली उम्मतों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो उन पर अल्लाह का अजाब आया, किसी कौम पर सैलाब आया, किसी कौम पर पत्थर बरसाए गए। सूरह आराफ में काफिरों ने यहां तक मुतालबा कर दिया कि फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, ऐ अल्लाह, हम तेरी आयतों को नहीं मानते, हम तेरे मोहम्मद नबी को नहीं मानते, अगर ये तेरा सच्चा नबी है तो हम पर पत्थर नाजिल फरमा, हम पर अजाब नाजिल फरमा। तो रब ने क्या फरमाया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ महबूब, मैं उन पर कैसे पत्थर बरसाऊं, कैसे अजाब नाजिल फरमाऊं, जबकि तो उनके दरमियान जलवा कर रहे। तो हुजूर काफिरों के लिए रहमत, हुजूर की रहमत से शैतान को हिस्सा मिला। अल्लाह ताला ने जब शैतान को अपनी बारगाह से निकाला, मरदूद करार दिया, तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया, एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई कि रोजाना शैतान को एक थप्पड़ लगाना है। रोजाना शैतान को एक थप्पड़ लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो 24 घंटे कराहता रहता है। 24 घंटे गुजरने के बाद फिर दूसरा थप्पड़ रसीद किया जाता।
इस तरह उसके साथ ये मामला चलता रहा। जब हुजूर पर यह आयत मुक़द्दसा नाजिल हुई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो शैतान ने कहा, क्या परवरदिगार आलम, या अल्लाह, क्या मैं आलमीन में शामिल नहीं हूं? क्या मुझे इस रहमत से हिस्सा नहीं मिलेगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्ते को हुक्म दिया कि अब उसे तमाचा मारना छोड़ दे, ताकि इसे भी मेरे महबूब की रहमत से हिस्सा मिल जाए। तो हुजूर की रहमत से शैतान को हिस्सा मिला। हुजूर जानवरों के लिए भी रहमत है। मेरे आका जानवरों के लिए कैसे रहमत है। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर एक जंगल से गुजर रहे थे, एक हिरनी ने हुजूर को देखा, वो पुकार उठी, या रसूल अल्लाह। मेरे आका उसके करीब तशरीफ ले गए। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, इस शिकारी ने मुझे कैद कर लिया है और ये वो वक्त है जिसमें मैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हूँ। या रसूल अल्लाह, आप मेरे जामिन बन जाए, मैं जाऊंगी, दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर तू वापस ना आई तो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं वापस ना आई तो फिर मुझ पर लानत हो, उस शख्स की तरह जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए वो आप पर दुरूद ना पढ़े। अब हुजूर ने उसको छोड़ा, वो गई, दूध पिलाकर वापस आ गई। सरकार ने फरमाया शिकारी से, क्या तू इसे फरोख्त करता है, बेचता है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपको तोहफे में देता हूं। हुजूर ने हिरनी को आजाद कर दिया। ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते हैं, वो हिरनी जा रही थी, उछल रही थी और कूद रही थी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इतने में जिब्रील अमी आ गए। अर्ज क्या, या रसूल अल्लाह, जिस तरह अल्लाह ताला ने इस हिरनी को वापस आपके हवाले कर दिया है, इसी तरह कयामत के दिन अल्लाह ताला आपकी उम्मत को आपके हवाले फरमा देगा। तो हुजूर जानवरों के लिए रहमत है। मेरे आका नज़ा के वक्त हमारे लिए रहमत है। मेरे आका काफिरों के लिए रहमत है। मेरे मुस्तफा गुनहगारों के लिए रहमत है। एक नौजवान हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसका बाप यहूदी था और वो इस्लाम कबूल करने से डरता था। दूर से हुजूर को देखता लेकिन करीब नहीं आता था। उसका वक्त आखिर आ गया। आखिरी वक्त आया, उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, क्या आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? बाप ने कहा, बेटा कहो, क्या ख्वाहिश है? कहा कि अब्बा जान, मैं मुसलमानों के रसूल को देखना चाहता हूं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिलना चाहता हूं। बाप ने कहा, बेटा वो हमारे दुश्मन है और हम दुश्मन को अपने घर नहीं ला सकते। कहा, अब्बा जान आखिरी ख्वाहिश है। अब उसका बाप हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। कहा, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मेरा बेटा जो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार था, वक्त आखिर है, उसने आपको बुलाया है। तो मेरे करीम आका अपने गुलामों के साथ खड़े हो गए, उसके घर तशरीफ ले गए। अब उसने वो सारी बातें बताई। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता था, बेहद प्यार करता था, छुप छुप के देखता था, आप मुझे बहुत हसीन लगते थे, लेकिन मैं इस्लाम कबूल करने से डरता था। या रसूल अल्लाह बताए, अब अगर मैं इस्लाम कबूल करूं, क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? क्या अल्लाह ताला मेरी मगफिरत फरमा देगा? तो गोया मेरे मुस्तफा ने फरमाया, क्या है मेरे गुलाम, कलमा पढ़ना तेरा काम है, रब से बख्शवाना मुझ मुस्तफा का काम है। वक्त आखिर उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पीछे पीछे रूबी परवाज कर गई। हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया, सहाबा किराम ने उसको घुसल दिया। मेरे मुस्तफा ने खुद जनाजा पढ़ाया, कब्र में उतारा और जब उसका जनाजा उठाया, मदीने की गलियों से गुजरने लगा तो वो किसी ने कहा कि आशिक का जनाजा है, जरा झूम के निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। मेरे मुस्तफा से रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हुजूर दुनिया में हमारे लिए रहमत, कब्र के अंधेरों में हमारे लिए रहमत, मीज़ान अदल पर हमारे लिए रहमत, पुल सिरात पे हमारे लिए रहमत, और रोजे महशर मेरे मुस्तफा हमारे लिए रहमत। रोजे महशर कैसे रहमत?
قیامت کے دن بڑا عجیب منظر ہوگا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ دوست کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ ماں باپ کام آئے گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پسینے میں غرق ہو گئے، اہل محشر جمع ہو کر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے شفاعت کے لیے، عرض کریں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آج ہماری شفاعت فرمائیے، تو آدم علیہ السلام فرمائے گے نفسی نفسی ذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج کوئی دوسرا تلاش کرو۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائے گے، وہ بھی یہی فرمائے گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گے، وہ بھی یہی فرمائے گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گے، وہ بھی یہی فرمائے گے۔ سب سے ہوتے ہوئے آخر میں پیارے مصطفیٰ کے پاس آئے گے، جب حضور کے پاس آئے گے میرے آقا فرمائے گے انا لہا، اے غلامو کل بھی میں نے سنبھالا تھا، آج بھی میں ہی سنبھالوں گا۔ انا لہا، آؤ آج میں شفاعت کرنے والا ہوں، آج میں شفاعت کے لیے ہوں۔ اللہ اکبر۔ سوال پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے حضور کے پاس کیوں نہیں گئے، سب سے آخر میں حضور کے پاس کیوں؟ تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ اگر سب سے پہلے حضور کے پاس چلے جاتے، حضور شفاعت کر دیتے، تو کوئی خیال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے، وہاں بھی کام بن جاتا، وہ بھی شفاعت کر دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے، وہاں بھی کام بن جاتا، وہ بھی شفاعت کر دیتے۔ تو سب سے ہوتے ہوئے آخر میں پیارے مصطفیٰ کے پاس کیوں؟ اس لیے کہ رب بتانا چاہتا ہے کہ آج سکہ چلے گا تو میرے محبوب کا چلے گا، آج سکہ چلے گا میرے محبوب کا چلے گا، میرا محبوب جس پر نظر رحمت ڈال دے گا میں اسے جنتی بنا دوں گا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ روز محشر میرے آقا ہمارے لیے رحمت، حضور انبیاء و مرسلین کے لیے رحمت۔ کیسے رحمت؟ آدم علیہ السلام سے صورتاً خطا ہوئی، زمین پر آئے 300 سال تک روتے رہے، زار و قطار روتے رہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، پس آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات، اس کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی خطا کو معاف کر دی۔ وہ کلمات کیا ہے؟ قال ربی انی اسألوک بحق محمد غفر لی، اے اللہ، اے میرے رب، محمد مصطفیٰ کا وسیلہ میری مغفرت فرما۔ رب نے فرمایا کیف عرفت محمدن، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا، میرے پیکر کو بنایا، میرے وجود میں روح ڈالی، میں نے سر اٹھایا، عرش کے پایوں پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش کے پایوں پہ لکھا دیکھا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء، پس میں سمجھ گیا جو نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہی تیرے محبوب کا نام ہے، وہی تیرے محبوب کا نام ہے۔ رب نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، اگر ہم اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتے تو یہ زمین و زمانہ ہوتے، مکین و مکانہ ہوتے، ارض و سما نہ ہوتے، باغ و شجر نہ ہوتے، تاج و فخر نہ ہوتے، برگ و ثمر نہ ہوتے، سماک و سمک نہ ہوتے، خشک و تر نہ ہوتے، بحر و بر نہ ہوتے، شجر و حجر نہ ہوتے، نہ آدم ہوتے، نہ بنی آدم ہوتے، نہ آدم میں دم ہوتا، نہ جود و کرم ہوتا، نہ آدم میں دم ہوتا، نہ جود و کرم ہوتا۔ اے آدم یہ رونقیں ہے تو اسی محبوب کے صدقے میں ہے، اسی پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں نہ آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، فرماتے ہیں کہ چاند و سورج کی کندیلیں کیوں ہے، یہ ستاروں کے انجمنیں کیوں ہے، یہ آبشار کے نغمے کیوں ہے، یہ قوس و قزح کے رنگ کیوں ہے، یہ دریا کی روانی کیوں ہے، یہ موجوں کا تلاطم کیوں ہے، یہ پھولوں کی مہک کیوں ہے، یہ پرندوں
بندوں کی چہک کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کیوں نہ آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان میں، ارے تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزمی مکان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔